There's news, there's sense, and there's nuisance. This show is all about that last bit. And I wish for once on this show, I didn't have to talk about all the nuisance I saw this week. It's been a week of tragedy at the Kumbh Mela. At the time of recording this show, the government has confirmed that 30 people died in a stampede and close to 60 people are injured. Now, through the Kumbh Mela, the Yogi government has been giving us hourly head counts of the number of people attending the Kumbh. Literally every day, we were getting hourly updates about the record number of people visiting the big Mela. अब तक 15 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। पिछले 15 दिनों में 14 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। 14 करोड़ लोग, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कुछ ही घंटों में 10 करोड़ लोग संगम में डुबकी लगाएंगे, ऐसा अनुमान है। 10 करोड़ लोग, 40 करोड़ लोग जहां पर आएंगे। महाकुंभ के चौथे दिन 30 लाख श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई है। But for some reason, when it came to telling us how many people died in the stampede, the UP government took more than 15 hours. For more than 15 hours, we had no clue what had happened, how many people had died, how many people were injured, what was happening in the hospitals. Absolute information black hole. In fact, absolute denial. In a situation like this, when those in power want to hide something, usually journalists step in and probe and question and investigate to bring truth to the public in the public interest. 20 crore snars, 10 crore today alone. The faithful have a field day. Stunning colors of Mahakumbh. Firstly, India Today, the faithful have a field day is not a great phrase to use. The faithful have a field day. To have a field day means to be given the opportunity to do something that you enjoy, especially something that other people do not approve of. मतलब किसी को खुली छूट मिलना. For example, if I was to use this in a sentence, I would say, India Today had a field day milking the Saif Ali Khan case. करीना घर पर थी तो सैफ के साथ अस्पताल क्यों नहीं गई? मतलब खुली छूट टू डू समथिंग यू शुडंट बी डूइंग. ये तो हो गया मेरा लैंग्वेज लेसन. अब थोड़ा एथिक्स के बारे में भी सुन लो. यू आर सेइंग दिस एट 4:30 PM. The stampede happened at 2 AM the previous morning. अभी तक हमें ये भी नहीं पता कि कितने लोग मरे हैं. The bodies are still being counted. Relatives are frantically looking for their loved ones. There's pain and tragedy unfolding. और आप हमें बोल रहे हैं, वाह, look at the stunning colors. Truly stunning. The Sanatan Dharma is all about triumph of hope over despair. The Sanatan Dharma is all about rising to fight again, rising, waiting for a new dawn. Unlike you, we didn't discover Sanatan Dharma after 2014, Gaurav, so spare us the pravachan. Do you have anything of value to tell us as a journalist on the spot as the story unfolds? There was a tragedy. Everyone was sad. There was a stampede. Sadly, some people may have lost their lives. The administration is not declaring anything openly just as yet, but some people were injured. Yes, there was tragedy. Some people were injured. Gaurav was this close to saying कि भाई बड़े बड़े मेलों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं. Administration is not telling anything openly to us. Administration is not declaring anything openly just as yet. Administration कुछ नहीं बता रही, लेकिन ये ढोल नगाड़े सुनो. At the same time, you hear the dhol, the nagaras, the tashas, because it is to rise to another day. This is about symbolism of triumph, of hope and faith. I can't emphasize this enough. This was happening at around 5 PM on a news channel. The government was still unwilling to tell us how many people had died, and Gaurav Sawant was busy telling us, "ये देखो मेले के रंग." Early this morning there was tragedy, but later in the evening there is celebration. The celebration of the Sanatan faith. The Sanatan Dharma is not just about knowledge. The Sanatan Dharma is also about strength. And these youngsters are displaying their skills with the sword, with the stick, with bow and arrow, and with the battle axe. Wah wah, Shri Shri art of deflection, Guru. Thank you for that. But what exactly was Gaurav seeing here? Watch these youngsters. They've got all sorts of weapons in their hand, and they're taking on
they're displaying their courage. Mr. Clutching at Straws Sawant. कैसे भी करके, कुछ भी बोल के, मतलब कुछ भी बोल के, बस माहौल थोड़ा मजेदार कर देता हूँ, थोड़ा रंगीन कर देता हूँ, ध्यान भटका देता हूँ लोगों का. Watch these youngsters. Now it's not as if Gaurav was not there on the ground as the tragedy had unfolded. He was there. Constantly for the past about 45 minutes, ambulances are rushing in. Ambulances are bringing people who were caught in that massive crowd. Ambulances were rushing in, people who were caught in that massive crowd. Caught in that massive crowd. Let's correct that, Mr. Gaurav Sawant. Ambulances were rushing in people who had died or people who were injured in the stampede. तुम्हारा खुद का कॉलीग बोल रहा था कि भगदड़ हुई है और लोगों की मौत हुई है. मौनी अमावस्या पर प्रयागराज महाकुंभ में आई भीषण भीड़ को देखते हुए प्रशासन के भी हाथ पैर फूले हुए हैं, क्योंकि भगदड़ हुई है और भगदड़ की वजह से कई लोगों की मौत हो गई है. Shweta from Aaj Tak was also atop a bus telling us that things had gone quite wrong. But if you truly wanted a picture from the ground on what had happened, you had to tune into ABP News or BBC that had reporters on the ground telling us the full extent of what was happening as things were unfolding. So past 3 a.m. and this road leading into the Mela, we have been seeing stream of ambulances coming and going. There's news of a stampede. We are not sure about the number, but something has horribly gone wrong. We must have counted about 20 ambulances zipping past this road in just about 15 to 20 minutes. As I said, it's about 3:15. We saw bodies being taken away from here on stretchers. There's no official word on the number of people that are feared dead or the number of people that are injured. यहाँ पर जो भी पुलिस फोर्स थी वो सब हट गए, मतलब सबको उनके हाथ पे छोड़ दिया गया. 4 लोग घर की छूट गई हैं. हाँ, छूट किसी मेले में. वहाँ पे बहुत सांस लेने की भी मौका नहीं मिल रहा था, लोग दब रहे थे बहुत. 1 बजे लगभग भगदड़ मची. उसमें क्या हुआ, एक रास्ता कर दिया, इसीलिए ऐसा हुआ. 1:30 बजे क्या हुआ यहाँ पर संगम में? सर यहाँ पे स्नान करते टाइम अचानक से भगदड़ मची और कई लोग घायल हो चुके हैं, जो कि मैं घायलों का कोई काउंट नहीं कर पा रहा हूँ सर. और यहाँ पे 17 से 18 लोगों की मौत भी हो चुकी है. हम लोगों ने खुद 4 पेशेंट डेड बॉडी ले जाके वहाँ पे अस्पताल में शिफ्ट किया. Kudos to reporters on these 2 channels and kudos to Dainik Bhaskar and Reuters that told us how many people died while Yogi administration was busy observing their Maun Vrat on the tragedy. महाकुंभ भगदड़ में 35 से 40 मौतें. उत्तर प्रदेश सरकार बोली 30 लोग मारे गए, 25 की शिनाख्त, 60 घायल. भगदड़ के बाद भास्कर रिपोर्टर सृष्टि मेडिकल कॉलेज पहुंची, जहां हादसे में मारे गए लोगों के शव रखे हुए थे. मेडिकल कॉलेज में भास्कर रिपोर्टर ने 20 शव गिने. यहां आखिरी डेड बॉडी पर 40 नंबर लिखा था. Dozens killed in India's Kumbh festival stampede. State police puts death toll at 30. 3 police sources say nearly 40 bodies brought to the morgue after the stampede. India Today was saying feared dead when Bhaskar and Reuters did the journalistic work of counting the dead. That's what journalists do. When the government tries to hide something, you unearth the truth. But if you're drunk on ad money, then all you get is a desperate attempt to make everything seem like sab changa si dekho melon ke rang. And here's the morbid irony. Many of these sarkari ads were about the Kumbh and how amazing the UP government's management of the Kumbh is. Your money and my money, our public money, channeled through ads about the Kumbh, went to these channels, and they didn't have the decency to use that public-funded Kumbh ad for public service journalism about the Kumbh. Here's what some of these channels were doing nearly 12 hours after the tragedy, when many people turned in to understand what had happened. सरकारें, ये झूठ बोलने वालों को पता नहीं, सरकारें ऐसे नहीं चलती है. बेईमानों को जाना पड़ेगा. PM Modi started speaking about Delhi elections. Loyally and dutifully, these channels cut to him live. By this time, between 1 and 2 p.m. in the afternoon, Reuters and Dainik Bhaskar had already put out figures of the number of people who had died, but not these channels. The focus was on PM Modi's election speech. And once the election speech was over, everyone cut to Kumbh ads. महाकुंभ 2025 अब तक का सबसे भव्य, दिव्य, हरित और सुरक्षित आयोजन होगा. महाकुंभ का है अटल संदेश, एकजुट हो अपना देश.
कुंभ की एड से अगर जी भर गया तो चलो कुंभ की रौनक थोड़ी और देखते हैं। After delivering successful concerts in Mumbai and then 2 back-to-back gigs in Ahmedabad, British band Coldplay's lead singer Chris Martin and his partner and actor Dakota Johnson were spotted at the ongoing Mahakumbh Mela 2025 on January 27th evening. Veteran actor Anupam Kher also shared a heartfelt video on social media expressing his gratitude and describing his profound experience in Prayagraj. मन जो है वो हर्षोल्लास से भरा पड़ा। That's not all. He even thanked Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath for the successful and safe organization of the festival. Choreographer Remo D'Souza too attended the Mahakumbh Mela 2025. In fact, sharing this video of his experience, he showcased himself taking a sacred dip into the holy waters of Prayagraj. Was seen clad in a simple traditional attire with his face partially concealed, allowing him to blend in with the crowd, and from silver screen stardom to spiritual leader. From the Bollywood siren of the 90s to now a spiritual leader, Mamta Kulkarni's journey has stunned many. Truly extraordinary. Again, I want to repeat that this is happening on a news show when the dead are still being counted. I'm not saying that India Today and other channels didn't talk about the tragedy at all. They did show it, but not the 24/7 coverage you would have expected. Not the focused questioning of the Yogi government on why they were silent on the number of people who had died nearly 12 hours after the tragedy. Many news channels were even finding it hard to say stampede. Several devotees were feared injured after a stampede-like situation broke out. At least 30 to 35 have suffered injuries after a stampede-like situation unfolded. Stampede-like situation? भाई, सैफ के घर अटैक होता है तब तो अब जल्दी से हमें ब्रेकिंग न्यूज बता देते हो. What happened, exactly how it happened, complete with full graphics. But for some reason, when it comes to the Yogi government, you can't get us the basic details from the ground on how many people died despite having 2 to 4 reporters per channel. Actually, I know the reason. The UP government has flushed the media with advertisements on Kumbh. So like we say, when the government pays, the government will be served. Till now, every channel has been busy hailing Yogi Adityanath for amazing arrangements at Kumbh. कुंभ का बढ़िया अरेंजमेंट करके कैसे योगी और मोदी ने सबको दिखा दिया. पीएम मोदी का विजन और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिशन, दोनों ने मिलकर महाकुंभ को धरती का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन बना दिया. 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन महाकुंभ में पहला अमृत स्नान हुआ. 3.5 करोड़ लोग 12 घंटे में डुबकी लगाए, कोई परेशानी नहीं. करोड़ों लोगों को दुबई, इटली और लंदन से ज्यादा महाकुंभ भा रहा है और योगी के इंतजाम नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं. क्राउड मैनेजमेंट का, इतनी बड़ी संख्या में भीड़ को नियंत्रित करने का, इससे बड़ा उदाहरण पूरी दुनिया में कभी नहीं देखा गया. योगी जी, एक बात पूछना चाहूंगी, किसी विपक्षी नेता ने आपको फोन करके या कुछ कभी कॉम्प्लीमेंट दिया कि योगी जी आपने कमाल कर दिया? But when things go wrong, an invisible, formless, nameless प्रशासन takes over. किसकी गलती है? किसकी गलती है? भीड़ की गलती हो सकती है. लोगों को वार्निंग दी कि क्राउड मत करो, फिर भी करा, लोगों की गलती हो सकती है. क्या करे, हिंदुस्तान में इतनी भीड़ हो जाती है, इतना तो मैनेज नहीं कर पाता कोई भी. सडनली योगी, हु वाज बीइंग कंग्रेचुलेटेड फॉर हिज भव्य दिव्य मैनेजमेंट स्किल्स, इज लाचार इन फ्रंट ऑफ द भीड़. ऐसे सिचुएशन में हर चीज़ पे राजनीति करना, महाकुंभ के खिलाफ बोलना, अरेंजमेंट्स के खिलाफ बोलना, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलना, ये गलत बात है. योगी जी भावुक हो गए और योगी जी अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, मगर जिन लोगों से मैंने बात की कि वो बहुत भावुक थे, क्योंकि 1 या 2 बजे के बीच में इतनी भीड़ हो गई और एक तरह से असंभव हो गया. बात बताते बताते सीएम योगी की आंखें भर आई. वो इस तरह से अगर भावुक हैं तो इसलिए कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाई. योगी आदित्यनाथ ने इस महाकुंभ में कोई कसर नहीं छोड़ी. भगदड़ क्यों हुई, भगदड़ का पूरा सच क्या है, ये लापरवाही है या कोई साजिश? प्रशासन की मुस्तैदी और प्रशासन जिस तरह से तुरंत 25 से, मेरे अपने रिपोर्टर से भी हमने बात की, उन्होंने कहा कि 2 से 3 मिनट में एम्बुलेंस पहुंची, 25 से 30 मिनट में हालात को नियंत्रण में किया गया, ग्रीन वे बनाकर जो है तुरंत जो है सबको अस्पताल में भर्ती कराया गया. ये हादसा और बड़ा या जाने और ज्यादा नुकसान और ज्यादा हो सकता था. योगी आदित्यनाथ ने यह भी समझाया कि प्रयागराज के महाकुंभ में आज सुबह भीड़ का कितना प्रेशर था. उन्होंने कहा कि ऐसा प्रेशर
पहले कभी नहीं हुआ। Now look, the Kumbh is no stranger to tragedy. The first post-independence Kumbh Mela in 1954, in that Kumbh, 100 people died under the exact same circumstances. People rushing to bathe on the auspicious day of the Mauni Amavasya. Back then, Nehru was grilled in parliament for his failure and mismanagement. Guess who gloated about this? पंडित नेहरू आए थे तब तो मेला इतना बड़ा नहीं होता था, उसके बावजूद भी यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, पंचायत से पार्लियामेंट तक अकेले कांग्रेस वाले थे। पंडित नेहरू जब आए थे, अव्यवस्था के कारण यहाँ भगदड़ मच गई थी। कुंभ के मेले में हजारों लोग मारे गए थे, कुचल करके मारे गए थे। In 2013, 36 people died at the Allahabad railway station in a stampede, again on the same day as Mauni Amavasya. Back then, the Kumbh in charge, Azam Khan, apologized and even offered his resignation. Guess who gloated about it? ऐसे लोगों को कुंभ मेले के प्रभारी मंत्री का दायित्व दिया जाता था जिन लोगों की न श्रद्धा के भाव थे, न वहां की परंपरा के साथ, वहां की संस्कृति के साथ, वहां की विरासत के प्रति जिनके मन में कोई सम्मान का भाव नहीं था। परिणाम क्या होता था? वही गंदगी, वही अव्यवस्था, वही भगदड़, ये कुंभ के साथ जुड़ गया था। So yes, this is not the first tragedy in a Kumbh Mela, but this is the first time a government used the Kumbh Mela for unending PR, unending chest thumping, continuous 24/7 gloating कि भाई देखो योगी कितना महान है। So when things go wrong, the blame also should be with the people who are claiming credit. योगी सरकार लगातार करोड़ों की भीड़ और बेहतर व्यवस्था का क्रेडिट लूट रही थी। ऐसे में कल रात जो हादसा हुआ, 30 लोगों की जान चली गई, उसके लिए सवाल भी उन पर ही उठेंगे और यूपी सरकार, पुलिस और प्रशासन इन सवालों से बच नहीं सकते। ABP News anchor got that exactly right. Even Sudhir Chaudhary got that exactly right on आज तक। क्या इस घटना के लिए लोगों को दोष देना सही होगा? लोगों का दोष नहीं है। लोगों को दोष देना गलत होगा। लोगों को दोष नहीं दिया जा सकता। Thankfully, by 9 p.m., Sudhir made up for what Gaurav Sawant had done at 5 p.m. Who would have thought? मेरा तो दिमाग चलना बंद हो गया। Just think about this. The Yogi government spent 7,000 crore on the Kumbh Mela. 7,000 करोड़। और अब बोल रहे हैं हम क्या करते, इतनी भीड़ हो गई। Here's what one eyewitness told News Laundry. क्या व्यवस्था है, व्यवस्था के बारे में थोड़ा बताओ। व्यवस्था कुछ नहीं है मैम, अगर व्यवस्था होती ना तो ऐसे लोग की वो हो न होती, घूमते थोड़ी। यहाँ सब लोग एक ही साथ जाते हैं संगम में, एक दूसरे को ठोस देते हैं, गिर जाते हैं, मर जाते हैं, कोई उनको कचर खौंद के चले जाते हैं। कौन सी व्यवस्था है यहाँ? प्रशासन का फेलियर था, पुलिस कहीं भी नहीं थी, सिर्फ पुलिस स्टेशन पे थी, रोड पे थी और माघ मेले में कहीं नहीं थे। सिर्फ पुलिस वहाँ थी जहाँ पे नागा साधु रहते हैं, VIPs रहते हैं। मैं योगी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, लेकिन योगी का ये चाहे जानबूझ के प्रशासन ने किया हो, कैसे किया हो, लेकिन प्रशासन का पूरा 100% फेलियर है। बहुत हलचल हुआ सुबह शाम 7 बजे से 4 बजे तक। 4 बजे ज़्यादा अधिक घटना घटी। भीड़ होने के कारण जनता की बहुत, और दूसरे तरफ जो संतों के लिए रखा गया था उसमें खाली रखा था। केवल एक त्रिसंगम के चलते लोग त्रिसंगम पर विशेष बल दिया। इस समय मैं संगम नोज पर मौजूद हूँ। यहीं पर वो जगह है जहाँ पर कल भगदड़ मची थी। रास्ते में आपको टुंड दिखेंगे लोगों के कपड़ों के, जूते और चप्पलों के। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर मेला के मैनेजमेंट की पोल खुल जाती है, क्योंकि एक भीड़ का पूरा रेला है जो कि आ रहा है, जा रहा है। कुछ लोग अभी भी यहाँ पर वैसे ही बैठे हुए हैं जैसे कि कल बैठे हुए थे, और उसी की वजह बताई गई है कि यहाँ पर वो भीड़ ही थी जो भगदड़ में तब्दील हो गई। और लोगों का समुंदर, उसके बीच में से ही आपको जगह बनाकर किसी तरीके से स्नान के लिए संगम नोज पर पहुँचना होगा। भीड़ का आलम ये है कि मैं खुद संगम नोज तक जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन धक्के से मुझे इधर ही ढकेल दिया गया है। संगम नोज तक भी पहुँचने की गुंजाइश नहीं है।
पुलिस प्रशासन की तरफ से, CISF की तरफ से घाट पर इस समय यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। इन्होंने कुछ दूरी पर, आज मैं देख रही हूँ कि बल्लियों के माध्यम से पिकेट पॉइंट्स बनाए हुए, जहाँ पर ये एक हाइट से मेला एरिया पर नजर बनाए हुए हैं। In the coming days, Akanksha Kumar will bring you a full big picture video on Kumbh, how it was used for PR and what exactly happened on the fateful day of the tragedy. We can bring you these ground reports with sharp questions because we are supported by you guys. We have not taken a single Kumbh ad in this Kumbh season. Because we guys don't need ads from governments who want to chest thump. We guys don't need the support of governments to continue to do what we do, to continue to do journalism. We just need you guys to step in. There's a QR code flashing on your screens right now. If you guys believe in the journalism that we believe in, if you guys believe in us, then please scan this QR code and support News Laundry. Choose an amount that's convenient to you. Support our endeavor at questioning the government, questioning those in power. So many of you people watch TV Nuisance. Almost 3 लाख 4 लाख व्यूज हमें मिलते हैं। फिर भी तुम में से कितने लोग सब्सक्राइब करते हो? अगर नहीं करते हो तो शर्म करो। Subscribe to News Laundry right now. If you like TV Nuisance, if you like our reporting, then subscribe and support us. स्वतंत्र पत्रकारिता के नाम पर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नाउ लेगेसी मीडिया की क्रेडिबिलिटी तो अब बस बद से बदतर होते जा रही है, टू सच एन एक्सटेंट दैट इवन द बिगेस्ट ऑफ नेताज हैव स्टॉप्ड गिविंग इंटरव्यूज टू बिग न्यूज एंकर्स। नेता लोग भी समझ गए हैं कि भाई प्यार भरे PR इंटरव्यूज अब जनता को हजम नहीं हो रहे हैं। सो नेताज हैव स्टार्टेड गिविंग इंटरव्यूज to people who in their eyes have more credibility than conventional journalists, which is a very sad statement. From news anchors to a film star to a startup founder, Modi ji made some pretty smart choices this month. मैं आपके साथ बैठ के बातें कर रहा हूँ, I feel nervous. It's a tough conversation for me to have. एक तो मेरे लिए पॉडकास्ट पहली बार हो रहा है, पता नहीं ये कैसा जाएगा आप लोगों को, आपके दर्शकों को। Pretty smart choice, like I said. But मजा तब आता मोदी जी अगर आप थोड़ी सी ऑनेस्टी से सवालों के जवाब दे देते। Here's our version of what an honest interview with you would have looked like. बजट कम था इसलिए एक्टर्स थोड़े घटिया हैं, but you get the point. याद है स्क्रिप्ट सब याद है? फुटेज टाइम पे पहुंच जानी चाहिए। जी एडिटर नीड्स टाइम फॉर एडिटिंग। We'll send. We understand. So मोदी जी, थैंक यू फॉर कमिंग। मैं वैसे आपको इंटरव्यू करने में थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा हूँ। nothing new. बट शुरू करते हैं आपके बचपन से। तो जो आपके अपने प्री PM प्री CM वाली जो ज़िंदगी है उसके बारे में थोड़ा बताइए, और वो रूरल इंडिया से कनेक्ट करिए ना। देखिए खुशामद जी भैया, अब तो सब जानते कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हो गया, लेकिन एक ऐसा टाइम था जब मैं बायोलॉजिकल था। देखिए लोग पता नहीं उनको पता है कि नहीं कि मैं एक बहुत गरीब परिवार से आता हूँ, एक बहुत छोटे से गांव में पला बड़ा हूँ मैं। तो बचपन में ना मैं बहुत तेज था, क्लास में सबसे तेज। लोग ऐसे पढ़ते हैं, मैं ऐसे पढ़ता था, ऐसे यू नो। कैसे ऐसे But what does this even mean? मीन ऐसा है खुशामद भैया, 0 ढा माइनस ढा, क्या हुआ? 0 ढा माइनस 0 ढा माइनस ढा हुआ 0 चाहिए? नहीं, तो आप ऐसे पढ़ते थे आप। वाह। तो ढा वापस दिया, 0 से बच गए। थैंक्स मोदी जी। तो आप ऐसे पढ़ते थे, विच मेक्स परफेक्ट सेंस, क्योंकि आप सबसे तेज थे। और लेकिन ये सब आपको आपके टीचर्स कहते थे? नहीं, वो एंटी नेशनल थे, वो मुझे भरा बुरा बोलते थे, जैसे सब बोलते। मैं
हर एवरीबॉडी इज वेरी मीन टू मी, वेरी क्रूअल। मतलब 12 साल एज चीफ मिनिस्टर, 11 साल एज प्राइम मिनिस्टर, मतलब 23-24 साल हो गए, लेकिन मैं अभी भी विक्टिम हूँ। एवरीवन वेरी मीन टू मी, मैं बेचारा पुअर, हाय हाय, एवरीवन मीन टू मी। फिर ये सब किसने कहा आपसे? काफी सवाल पूछता है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। गुड मूव। मोदी जी, आप इतना टाइम देश की सेवा में लगाते हैं, बहुत बिजी रहते हैं आप, लेकिन फिर भी लोग आपको ऐसे ट्रोल करते हैं, आपको अलग अलग नाम देते हैं, कहते हैं कि आप वो डिक्टेटर हैं, कम्युनल हैं, ऑटोक्रेटिक हैं, अंबानी अदानी के वो परम मित्र हैं। सवाल पूछे, अंडरस्टूड। तो मैं सवाल इस सर, आप इस सबसे डील कैसे करते हैं? अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। मैं भाई पहले तो आपको बता दूं भैया कि पता नहीं मैंने जिक्र किया कि नहीं कि मैं बहुत गरीब परिवार से आता हूँ, मैं बहुत छोटे से गांव में पला बड़ा हूँ। हाँ, मतलब ये तो सर आपने वो 12 बार बोला हुआ है, यही बात बहुत बात। अच्छा रियली जी, 0 बार बता दो, 0 बार की ढा चाहिए? ढा 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 ढा। आप बहुत गरीब परिवार से आते थे। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि जब लोग मुझे गालियां देते हैं, मैं कहता हूँ भाई दे ही रहे ना, कुछ ले तो नहीं रहे। हमारे भैया अहमदाबाद में एक चुटकुला है कि एक स्कूटर पे जा रहा था अहमदाबादी और आगे ठोकर लग गई, तो आगे वाला उसको बोलने लग गया डिक्टेटर हो, ये हो वो, जो भी गंदी गंदी बातें। तो लोगों ने बोला भाई आप तो इतने सुशील, कुछ कहते नहीं, आप इतने मतलब पीसफुल टाइप के, आप कुछ कहते क्यों नहीं, कुछ करते क्यों नहीं? तो उसे बोला कुछ दे ही रहा है ना, कुछ ले तो नहीं रहा। तो यह है अहमदाबादी एटीट्यूड। तो वो दे ही रहा है, कुछ ले तो नहीं रहा, तो जो उनके पास है वो देता है, जो मेरे पास है वो मैं दे देता हूँ। जैसे कि ढा, करेक्ट, ढा। जिन लोगों को ढा चाहिए ढा, लेकिन भैया जिन लोगों को और कुछ चाहिए, जैसे कि CBI है, इनकम टैक्स है, नोटिसेस हैं, मतलब NIA है, ED है, बहुत कुछ है, तो मैं वो दे देता हूँ। फिर उसमें इतना वो मतलब बिजी हो जाता है ना, बिजी, कि फिर वो गाली देना भूल जाता है। वेरी नाइस। हाँ, और ऐसे में उनको इस सब के साथ एक एक्स्ट्रा 2AB भी मिल जाता है। मिलता है कि नहीं मिलता? एक्स्ट्रा 2AB मिलता है, बट 2AB बोले तो मतलब डबल स्पीड पर आगे बढ़। ओके मोदी जी, मैं जैसे अभी आपके सामने बैठा हूँ तो मुझे बहुत एंग्जाइटी हो रही है, और मुझे पता नहीं कि मैं नाविका, अर्नब, सुधीर, रूबिका इन सब की तरह चाटुकारिता कर पा रहा हूँ या नहीं। सो इफ़ आई एम अनेबल टू डू इट, आई अपोलोजाइज इन एडवांस। लेकिन मेरा सवाल ये था कि क्या आपको भी कभी एंग्जाइटी होती है? देखिए, हमने एंग्जाइटी का जिक्र किया तो मुझे एक किस्सा याद आया कि देखिए मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, बहुत छोटे से गांव में पला बड़ा हूँ। Oh really? First time hearing this, पहले कभी सुना नहीं, this is brand new information. नहीं, तो ब्यूनी। तो अब और मुझे एंग्जाइटी फिर कभी नहीं हुई, बस 2002 में ना, तब मुझे थोड़ा सा एंग्जाइटी हुआ था। जी, वो 2002 तो काफी इवेंटफुल साल था ना, मतलब वो मुझे याद है, गुजरात इलेक्शंस, गोधरा। नहीं, वो सब सॉर्टेड था उससे। ओके, देखिए भैया, 2002 में जानी दुश्मन फिल्म रिलीज हुई थी। हाँ, आपने उसके VFX पता नहीं देखा कि नहीं देखा, सोनू निगम की एक्टिंग। भाई मैंने वो एक्टिंग देख के मुझे अचंभा हो गया, आश्चर्य हो गया मुझे कि ये जो ऊर्जा है, स्पेशल VFX, ये देख के मुझे अंदर से एंग्जाइटी होने लगी। एंग्जाइटी तब ही हुई थी, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम। सर, जानी दुश्मन देख के तो किसी को भी मतलब एंग्जाइटी हो सकती है, मतलब। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं खुशामद जी, भैया मुझे लगता है कि मेरी फुल नहीं अभी तक, मुझे रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत है, मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अभी तक फुल्ली यूज नहीं हुई है। तो मतलब और रिस्क लेना बाकी है, वो डीमोनेटाइजेशन काफी नहीं था? देखिए भाई, वो मेरे लिए रिस्क नहीं था, वो बाकियों के लिए रिस्क था। लोग के धंधे चौपट हो गए, मतलब रातों रात शादियों में कैश ही गया। So funny it was. It was तो लेकिन वो रिस्क मेरे लिए थोड़ा था,
मैं बोल रहा मेरी रिस्टिंग कैपेसिटी अभी तक पूरी यूज नहीं हुई है, वो करना बाकी है अभी। और रिस्क क्या है मतलब, और कैसे लेंगे आप जो आपने नहीं लिया है? इंटरव्यू। देखिए भैया, इंटरव्यू देना बिना कोई प्रेपरेशन, बिना कोई, या प्रेस कॉन्फ्रेंस, फुल प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिना स्क्रिप्टेड सवाल, बिना कुछ, जस्ट मतलब सवाल पूछो, जस्ट आस्क बॉस, पूछो सीधा। इमेजिन रिस्क, उतना रिस्क, इतनी ऊर्जा आएगी अंदर से, ऊर्जा, वो जो ऊर्जा होगी दोनों के बीच की ऊर्जा, और अब सवाल ऐसे ऐसे आएंगे, सवालों में ऐसे दूंगा, वो जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है ना, वो फुल यूज नहीं हुई है। तो व्हाट स्टॉपिंग यू? मतलब देखिए, मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी तो है, लेकिन सामने वाले की भी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए ना। मतलब मैं तो रिस्क ले लूं, सामने वाला रिस्क लेने को तैयार है कि नहीं, दैट्स द क्वेश्चन। इसमें क्या है यार, मतलब लाओ असली क्वेश्चन मैं कर देता हूँ। अच्छा, ढा जीनो, ढा चाहिए, ढा सर, मतलब सॉरी। देखिए, रिस्क लेना एक अलग चीज है, उसका जो रिजल्ट है ना, आगे क्या होगा, वो कैपेसिटी बहुत कम लोगों में है। अगला सवाल तो पूछ लेंगे आप, लेकिन उसके बाद क्या होता है ना, वो कैपेसिटी लोगों में नहीं है। You see, that's the thing. वही रोक रखा है, इसलिए मेरी क्या गलती है? मतलब मैं तो चाहता हूँ बड़ी से बड़ी रिस्क लूं, आगे वाले लेने को तैयार ही नहीं है। तो इसमें तो सर सामने वाले की गलती है, आपकी गलती तो है बिल्कुल, never my fault। वो नहीं रिस्क लेना चाहते और बोलते हैं I look bad। Never my fault। It's not your fault। They're always their fault। It is their fault। मतलब सर आप तो मतलब वाह, That's all the newses we have for you this week. We'll be back next week. Until then, stay mad. That's the only way. Do read our detailed report on what eyewitnesses had to say at the Kumbh Mela by Akanksha Kumar. This is on our website in English and in Hindi. And stay tuned for our full video ground report on everything that's been happening at the Kumbh Mela. Need I remind you, we're able to do this kind of reporting because you guys support us. And if you continue to support us, we can ask more ambitious, more big, powerful, strong questions to those who deserve to be asked questions.